Good afternoon, para and two. Today topic is lumbar vertebra. Firstly, describe the peculiarities of lumbar vertebra. A lumbar vertebra has massive body, massive and large body, right? Vertebral foramen, it is triangular in shape. This one is a foramen, it is triangular in shape. It has body, massive and large body, right? Spine is quadrangular in shape. This one is the spine. Spinous process, it is quadrangular in shape. Superior articular facet, it is concave, and inferior articular facet, it is convex. This one is the superior articular facet, right? It is concave in shape, right? This one is the superior and faces medially also. This one is the superior articular facet. This is called inferior articular facet, faces laterally, right? Now, classification of the bone. There are the 5 lumbar vertebra. They are classified as a typical and atypical lumbar vertebra. Typical means typical and atypical both are different. Typical, it is same feature, and atypical, it has different feature. First to fourth lumbar vertebra are typical. L1, L2, L3 and L4 lumbar vertebra, and last fifth lumbar vertebra, it is atypical lumbar vertebra. Got it? Now first one, discuss about the typical lumbar vertebra. Typical lumbar vertebra, it has body, vertebral foramen, vertebral arch, pedicels, lamina, and spine and transverse process and the articular process. What is the articular process? It articulate with each other, and L3 vertebra articulate with the L4 vertebra articular facet, superior articular facet and the inferior articular facet. That is called articular process. Now third point, बॉडी इट हैज लार्ज एंड मैसिव. फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया जैसा कि मैसिव बॉडी इट इज लार्ज. दिस वन इज द बॉडी, इट इज मैसिव बॉडी एंड लार्ज, and it is transverse diameter. This one transverse diameter, it is larger compared to AP diameter. AP diameter is width is less compared to transverse diameter, and upper and lower surface are covered by the hyaline cartilage, which in turn are related to the intervertebral disc. Now अब फर्स्टली हम बात करते हैं डिस्क की. Disc like this one is another vertebra, lumbar vertebra. Here is the other lumbar vertebra. Okay, then here is the lies. This one is यहाँ पे जो लाई करती है, that is called intervertebral disc. अब जो ये पॉइंट लिखा है upper and lower surface are covered by the hyaline cartilage. अब यहाँ इसकी this one is the lower surface, another vertebra की this one is the superior surface, and superior surface below the vertebra and inferior surface above the vertebra, that is like the intervertebral disc. Okay, firstly discuss the body. बस मैं इतना पार्ट डिस्कस कर रही हूँ. दिस वन इज द बॉडी, दिस वन इज द पेडिसल, दिस वन इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्सली लाई करते हैं. दिस वन इज सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, इट इज कॉनकेव इन शेप, इट इज लाइक मिडली. और यहाँ ये दिस वन इज द inferior articular facet, it is convex, lies laterally. This one whole, this is called transverse process. Okay, आगे हम डिस्कस करेंगे. दिस वन इज द vertebral foramen, it is triangular in shape. दिस वन इज द, जैसे हमने हर जगह पढ़ते हैं thoracic में सर्कुलर इन शेप, वैसे यहाँ पे दिस फोरामेन इट इज द ट्रायंगुलर इन शेप. ओके, नाउ anterior, दिस वन इज द anterior surface of the body. इधर यहाँ पे जो यहाँ दिस वन इज द posterior surface of the body. Superior या upper surface, this one is the lower surface. Firstly, anterior surface on the midline attachment of the anterior longitudinal ligament. On either side of the anterior longitudinal ligament, there is the attachment of the crura of diaphragm. Okay, now upper margin and lower margin attachment of psoas major, it tendinous arch. Okay, now posterior longitudinal ligament, anterior longitudinal ligament, anterior surface, and there is the posterior longitudinal. यहाँ पे और vertebra लग जाएंगी. There is the posterior longitudinal ligament. एक अच्छा डायग्राम है जो आगे मैं शो करवाऊंगी. Now move on the next slide.
ओके, दिस वन इज द, जो भी मैंने बात की, दिस इज द अंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड दिस वन इज द वर्टिब्रा, अनदर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, इनके बीच में दैट इज कॉल्ड इंटरवर्टिबल स्पेस, दैट इज कॉल्ड लाइज द इंटरवर्टिबल disc. This one is the posterior longitudinal ligament. Okay, this one is the transverse process. This one is the inferior articular facet और यहाँ से दूसरा, this one is superior articular facet. This one is the transverse process. This one is the transverse process. Okay, now move on the next slide. This one is the vertebral foramen. ठीक है, it is triangular in shape. Conus medullaris, conus medullaris जो है vertebral conus medullaris occupies the vertebral foramen lumbar first vertebra. ठीक है, ये आपको स्पाइनल कॉर्ड में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा. नाउ सेकंड पॉइंट इज इट इज द cauda equina, end of the spinal cord. It is contained in the foramina of the lower four lumbar vertebra. Okay, now vertebral arch की बात करते हैं. First one, pedicel, lamina, spine and transverse process and the articular process. Now one by one discuss करते हैं. First, pedicel, this part, this one is the body जो मैंने पहले डिस्कस कर. this one is pedicel, this one here to here, this part, this is the pedicel or short, first one short and strong. okay, superior vertebral notch. अब देखिए, this one is the pedicel, first one this called upper border, this one is the lower border. अब यहाँ क्या cavity बन गई, this is the less cavity, less deep, that is called superior vertebral notch. Okay, now here is the deep, that is called inferior vertebral notch. तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई, superior vertebral notches, inferior vertebral notch. Superior vertebral notch less deeper. Okay, inferior vertebral notch more deeper. Okay, vertebral notches are adjacent vertebra complete the formation of the intervertebral foramen. तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे ये इंटरवर्टिबल फोरामेन बना. हाउ कैन फॉर्म द इंटरवर्टिबल फोरामेन. अब देखिए, दिस वन इज अनदर वर्टिब्रा, मान लो L3 वर्टिब्रा, दिस वन इज द L4 वर्टिब्रा. तो L3 वर्टिब्रा का जो इंफीरियरली जो बन रही थी, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच, और यहाँ से कौन सी सुपीरियर वर्टिब्रल, दोनों जहाँ मीट करती हैं, दिस वन इज द लमाइना, इंफीरियर आर्टिकुलर फैसिस, सुपीरियर आर्टिकुलर, ये जो पॉइंट, दिस होल, दैट इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. Any doubt? Now we will discuss about the lamina. अब हाँ, फर्स्ट वन एक चीज, इंटरवर्टिबल फोरामेन से आपका पास करता है, पासिंग स्ट्रक्चर थ्रू दिस इंटरवर्टिबल फोरामेन, दैट इज पास स्पाइनल नर्व्स एंड रेडिकुलर वेसल्स. नेक्स्ट पॉइंट इज लमाइनी. इट इज दीज आर शॉर्ट एंड थिक डायरेक्टेड. अब ये लमाइनी शॉर्ट होगा और थिक होता है. ठीक है, और ये पोस्टीरो, पीछे के ले जाएंगे तो पोस्टीरो मीडियली, इट इज लाइज पोस्टीरो मीडियली. अब यहाँ पे अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट ऑन द अपर बॉर्डर, इसके कौन सा अपर बॉर्डर, ओके, एंड द लोअर बॉर्डर, और आगे के लिए जो हम शो नहीं कर पाए, दैट इज अंटीरियर सरफेस. ओके, नाउ देयर इज द अटैचमेंट ऑफ द अंटीरियर, देयर इज द लिगामेंट अटैच, दिस इज द लिगामेंटम फ्लेवम. कौन सा लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम. द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लमाइना गिव्स द अटैचमेंट ऑफ द डीप मसल. अब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लमाइना पे डीप मसल जो बैक की होती है वो अटैच होती है. नाउ स्पाइन कैसा रहेगा, स्पाइन इज द क्वाड्रिलेटरल इन शेप. ओके, अब कैसे, अभी मैंने पीछे स्पाइन की बात की, सुपीरियर इंफीरियर बॉर्डर. स्पाइन में भी दो बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, और सुपीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर भी होता है. तो फर्स्ट वन सुपीरियर इंफीरियर बॉर्डर, दैट इज द अटैचमेंट ऑफ इंटर स्पाइनस लिगामेंट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट, दैट इज कॉल्ड इंटर स्पाइनस लिगामेंट. कौन से स्पाइनस लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट. Okay, interspinous ligament in the midline. ठीक है, now interspinalis muscles in the on each side. अब जहाँ second point is the posterior border. On the posterior border provides the attachment of the supraspinous ligament. It is also very important ligament, that is called supraspinous ligament. Okay, in the midline. Then transverse process, अभी मैंने पीछे दिखाया pedicel, lamina और transverse process, they are tapering and thin. Okay, medial lateral arcuate ligament are attached to the tip of the transverse process lumbar vertebra L1. Iliolumbar ligament are attached to this tip of the L5
vertebra. An anterior surface is marked by the faint ridges which attached the anterior lamina of thoracolumbar fascia. It is also very important fascia, this one. ठीक है, फर्स्ट वन इंटरस्पाइनस लिगामेंट, सेकेंड सुप्रास्पाइनस, थर्ड कौन सा ऑन ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जो है थोरैकोलम्बर फेसिया. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. जैसा कि हम देख रहे हैं सबसे पहले अंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट आल्सो दिस वन इज द अंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, दिस वन इज द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, there is the intervertebral disc. okay, this one is the nucleus pulposus. अभी मैंने पीछे पढ़ा कौन सा लिगामेंट, सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर पे मैंने बताया, सुपीरियर बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर पे जो लिगामेंट अटैच हो रहा था दैट इज कॉल्ड इंटरस्पाइनस लिगामेंट. दिस वन इज द इंटरस्पाइनस लिगामेंट जो पीछे भी मैंने डिस्कस किया. ओके, नेक्स्ट इंटरस्पाइनस लिगामेंट हमने पढ़ा था, और कौन सी, और हमने मसल पढ़ी थी इंटरस्पाइनलिस मसल ऑन इस साइड. ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर स्पाइनस प्रोसेस, दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर. ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर पे अटैच हो रहा है दिस इज द लिगामेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो बार बार मैं बोल रही हूँ, दिस इज कॉल्ड सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट. पीछे हमने डिस्कस किया ऑन द मिड लाइन, दैट इज कॉल्ड, मिड लाइन में स्पाइनस प्रोसेस आती है, उसके टिप से यहाँ से पूरे लग के नीचे तक जाता है, दैट इज कॉल्ड सुपर स्पाइनस लिगामेंट. फिर मैंने पढ़ा था ट्रांसवर्स प्रोसेस, मीडियल और लेटरल आर्केट लिगामेंट. अब ये ट्रांसवर्स प्रोसेस यहाँ पर आपका अटैच होता है, ये दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस, दिस वन हियर इज अटैचमेंट ऑफ द, ओके, attachment of medial and lateral arcuate ligament attach on the tip of the lumbar vertebra. अगर ये मान लो अगर ये L1 vertebra है, ठीक है, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे यहाँ पे अटैच हो रहा है लिगामेंट मीडियल लेटरल आर्केट लिगामेंट. ठीक है, L5 vertebra पे कौन सा लिगामेंट था जो मैंने पीछे पढ़ा, इलियो लंबर लिगामेंट अटैच ऑन द टिप, वो भी टिप पे, ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप पे कौन सा L5 vertebra पे इलियो लंबर लिगामेंट. ठीक है, उसके बाद नाउ दिस वन इज दिस पार्ट, देयर इज अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंटम फ्लेवम. हमने पीछे पढ़ चुके हैं लिगामेंटम फ्लेवम का अटैचमेंट. ओके, दिस वन इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस डिस्कस किया, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, anterior longitudinal ligament I will discuss before in a slide, and also this one is intervertebral disc. okay, now ये जो foramen बनाया था inferior, ये this one is the inferior vertebral notch, यहाँ there is a superior, but this one foramen, this is called intervertebral foramen. okay, this part angular circle ring बन गया, that is called annulus fibrosus. This point, this is called nucleus pulposus. okay, now articular process. अब हम आते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस. अब आर्टिकुलर प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट पहले मैंने बताया, it is concave, faces medially, mainly faces medially, and the inferior articular facet, it is mainly lies laterally. ठीक है, superior articular facet and the inferior articular facet. got it? Now mammillary process provide the attachment of the medial intertransverse muscles, deep muscle of the back. okay, now some other point of the atypical जो मैंने बताया, 4 lumbar vertebra is the typical and atypical मतलब कुछ different होगा इनमें. okay, thick and short transverse process are contained to the whole of the pedicel part of the body. The distance between inferior articular process is more than the between superior articular
process. Okay, the body is a very much deeper anteriorly than the posteriorly. Now and this one is the transverse process, right? This is the spinous process. This one is the transverse process, right? This one is the inferior articular facet. This is called inferior vertebral notch. This one is the superior vertebral. This whole, it is body. Here to here, this one. ये पूरा क्या है? बॉडी. जैसे अदर डायग्राम में हम देख सकते हैं. दिस वन इज द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट. दिस वन इज द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट. कॉनकेव, मैंने पीछे बताया, कॉनकेव एंड फेसेस मेडली. दिस होल इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्रोसेस. दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस. अब एक चीज यहाँ पे देखो, जो मेन चीज जिसके लिए मैंने डायग्राम डाला है, ये चीज मैं दिखाना चाह रही हूँ कि इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, राइट, ऑफ L3 वर्टिब्रा, राइट, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट L4 वर्टिब्रा. ये दोनों जहाँ आर्टिकुलर, दिस इज आर्टिकुलर, तो मैंने ऐसे ही सैक्रम में बताया था L3 L4 वर्टिब्रा के उनके बीच में जो नॉच बनेगी दैट इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल नॉच. ठीक है, तो जहाँ पे ये क्या है? दिस पार्ट, दिस वन इज द, आगे से अगर हम देखेंगे, दिस वन इज द पेडिसल, राइट, सॉरी, हाँ, दिस वन इज द पेडिसल. पेडिसल हो गया. दिस पार्ट इज कॉल्ड पेडिसल, राइट. और ये क्या है? दिस पार्ट इज होल, दैट इज कॉल्ड लमाइना. तो मैंने बताया था जहाँ पेडिसल है, मतलब इधर से सोल लेटरल व्यू में अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमें दिखेगी इंटरवर्टिब्रल नॉच, मतलब कुछ यहाँ पे इस साइड यहाँ पे दिखेगी, दैट इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल नॉच, राइट. दिस वन inferior articular process, right. This one is the intervertebral disc. Transverse process, body, ठीक है. superior articular facet. Spinous process मैंने बता दी. This whole, that is spinous process. This is the posterior view. इसमें कुछ चीजें दिख रही तो वो दिखा दी. थैंक यू. अब बात करते हैं क्लिनिकल पॉइंट. फर्स्टली देखिए, हर चीज में तो सब चारे जितने भी हैं इनमें सब में अपना अपना मीनिंग है. स्पॉन्डिलोलाइसिस पहला वर्ड. दूसरा आता है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस. अब इनके सब सबके लास्ट वर्ड है, इनका मैं मतलब आगे बता रही हूँ. दिस पार्ट लिस्थेसिस, ओके, लाइटिस, लॉसिस. अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है स्पॉन्डिलोलिसिस. लिसिस मीन्स व्हाट? पार्ट्स इंटरआर्टिकुलरिस डिफेक्ट. ठीक है, जो हम एक्सरे देखेंगे जब ये अगर फ्रैक्चर होता है तो इसमें क्या होता है, कैसा होगा? स्कॉटी डॉग साइन दिखेगा. ओके, रिमेंबर, spondylolysis fracture on the parts interarticularis. Okay, third point, it terms used to describe the anatomical defect of break of parts interarticularis of the vertebral arch, usually occur in the lower lumbar spine. Okay, especially L5. Okay, usually caused due to the repetitive trauma, maybe stress fracture, hyperextension, female tennis players, weightlifters, football linemen वगैरह. Okay, now spondylolisthesis. Listhesis, अब जो इस चीज को मैंने डिस्क्राइब किया, दिस पॉइंट, इट मीन्स वर्टिबल स्लिपिंग. ठीक है, स्लिप करना मतलब फॉरवर्ड आगे के लिए स्लिप कर जाना, फिसल जाना. दिस वन इज द स्लिपेज. That means vertebral slippage. Then this condition of the forward slipping of the vertebra may be affect the nerve.
जब अगर आगे कोई चीज स्लिप करेगी तो मे बी अफेक्ट द नर्व. वन वोन, मेन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन वोन स्लाइड फॉरवर्ड ओवर द बोन बिलो. अब एक बोन कोई रखी है, ओके, उसके नीचे दूसरी बोन है. अगर ये स्लिप करेगी ऐसे फॉरवर्ड स्लिप करेगी, तो जब ये चीज ऐसे आ गई यहाँ पे, ओके, तो ये फॉरवर्ड स्लिप करी, देन यहाँ से जो नर्व जा रही मे बी अफेक्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट अ डिस्क स्लीपिंग, इट इज अ स्लीपिंग ऑफ वर्टिब्रल बॉडी. मेन पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट जो हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, स्पॉन्डिलिटिस. लाइटिस मतलब, लाइटिस का मतलब मीन्स वर्टिब्रल इन्फ्लेमेशन. ओके, वर्टिब्रल इन्फ्लेमेशन मतलब कोई वर्टिब्रा है, जिस वन वर्टिब्रा उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए. ओके, नाउ स्पॉन्डिलोसिस. लॉसिस का मतलब क्या होता है, मीन्स दिस पार्ट. ओके, मीन्स वर्टिब्रल अर्थराइटिस, फैसेट सिंड्रोम. एक चीज बताई जा रही है कि इन स्लाइड को, इन जो बर्ड्स हैं इनको कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, दिस वन इज स्पॉन्डिलोलाइसिस. ठीक है, स्पॉन्डिलोलाइसिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, राइट, और स्पॉन्डिलोसिस. ठीक है, इनसे कंफ्यूज नहीं होता. रिमेंबर कि ये दिखाया जा रहा है पार्स इंटरऑर्टिकुलर फ्रैक्चर. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्पॉन्डिलोलाइसिस फ्रैक्चर ऑफ द पार्स इंटरऑर्टिकुलर. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ रखी सैक्रम बोन और यहाँ सब सारी ये कौन सी वर्टिब्रा रखी है हमारी, सब सैक्रम बोन के ऊपर सबसे ऊपर कौन सी वर्टिब्रा रखी होगी हमारी, L5. ठीक है, L1, L2, L3 एंड L4. ठीक है, अब हम वन बाई वन डायग्राम देखते हैं. सबसे पहले दिस पार्ट इज अ पार्स आर्टिकुलरिस स्पॉन्डिलोलाइसिस. ओके, अब जो हम स्कॉटी साइन बार बार बोल रहे थे, यहां पर देखिए ऐसे स्कॉटी साइन हो जाता है. आई मेक द, और यहां से ऑब्लिक फ्रैक्चर हो गया मान लो, ब्यूटीफुल आईज. ओके, दिस वन इज स्कॉटी साइन. ओके, नाउ स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस. ठीक है, दिस पॉइंट आई डिस्क्राइब, यहाँ से ऐसे फ्रैक्चर हुआ. ठीक है, ये चीजें हमें दिख रही हैं, इधर फ्रैक्चर हो गया ऐसे. ओके, तो इसमें मेनली क्या चीज हमें दिखेगी, दिस पॉइंट इज लाइक दिस, दिस वन इज द कमिंग फॉरवर्ड. ठीक है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगी. ओके, स्लिप कर जाएगी. ठीक है, नाउ अब जैसा कि हम देख रहे हैं स्पॉन्डिलोलाइसिस. ठीक है, इसमें मैंने बताया था पहले पॉइंट में कैसा आएगा, इस स्कॉटी साइन. ओके, इन द ऑब्लिक फ्रैक्चर इन द एक्सरे हमें स्कॉटी साइन दिखेगा. ठीक है, उसके बाद आता है लिस्थेसिस. इसमें भी मैं बता चुकी हूँ, यहाँ से फ्रैक्चर होता है तो वर्टिब्रा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है. ओके, तो यहाँ पे नर्व में भी अफेक्ट. ओके, थर्ड पॉइंट स्पॉन्डिलाइटिस. लाइटिस में क्या होगा, मेनली पॉट्स टीवी ऑफ द स्पाइन. ठीक है, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. ओके, और इसमें क्या होता है मेनली जो बता चुके हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्टिब्रा. ओके, और मेनली इसमें बॉम्बो स्पाइन. ठीक है, दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट आता है लॉसेस. लॉसेस में मैंने बताया बहुत ज्यादा अर्थराइटिस. ठीक है, जिसको यहाँ पे बताते हैं, यहाँ से यहाँ पे हो जाता है फैसेट सिंड्रोम. पीछे मैंने लिखवा चुकी हूँ फैसेट सिंड्रोम. ओके, तो स्पॉन्डिलोलाइसिस जो होता है, लॉसेस जो होगा, इसमें डीजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्रा. ओके, एंड न्यूरल फोरामेन. ओके,
एक्सरे जब हम देखेंगे नैरो स्पेस दिखेगा इसे एक्सरे में, जब हम देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें बेटा, नैरो स्पेस दिखेगा, विच लीड्स टू compression of the nerve root. It is called radiculopathy. Will lead to pain, sensory motor, ये आपको चीजें दिखेंगी. This is arthritis.